وہ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے ہم نے ڈرون مارے ہیں پاکستان کو، تو میرا مطلب جب انہوں نے کہہ دیا تو ہمیں مان لینے چاہیے۔ ہندوستان کے کہنے کے اوپر وہ جو ہے وہ لگے ہوئے اور ہندوستان جو ان کو فیڈ کر رہا ہے وہ اسی قسم کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ڈیفنس طاقت کو دیکھیں، یہ نرمی کیوں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دفعہ میرا مطلب ہے اچھی طرح چھٹا کیوں نہیں لگا دیتے، رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر ایک بڑی مضبوط لابی موجود ہے جو طالبان رجیم کی سپورٹر ہے، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے اور وہ پاکستان کے ہر ادارے میں بھی موجود ہے، اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کو اپنے اس بارڈر کو گرم نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، پر فیلڈ مارشل عاصم منیر تو کہتے ہیں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، ان کی پالیسی تو بہت سٹریٹ ہے، ان کے راستے میں بھی لوگ رکاوٹ ہیں۔ بہت سارے لوگ افغان ٹریڈ کے ذریعے سے پاکستان میں بیٹھ کر بھی بہت پیسے کماتے تھے، اس موجودہ رجیم نے آ کر وہ پیسے بند کر دیے، نہ افغانی کما پا رہے ہیں نہ پاکستانی کما پا رہے، تو وہ طبقہ بھی موجود ہے جو پریشرائز کرتا ہے اور بزنس کے پوائنٹ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ویو تو افغان طالبان کے خلاف نظر آیا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کو یہ کرنا چاہیے کہ بیانات سے آگے بڑھ کر جو ہر مہینے ان کی فائنینشیل ایڈ کرتے ہیں، جس کی اب رپورٹس آ چکی ہیں، تاکہ یونائٹڈ نیشن کی بھی رپورٹ ہے، خود امریکہ کی رپورٹ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے جن مقاصد کے لیے دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو امریکہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو ان پیسوں کو بند کرے۔ تو یو اے ای اور انڈیا نیکسس بھی ہے، تو ہمیں تو پھر یہ افغانستان میں زیادہ تنگ کر رہا ہوگا یو اے انڈیا نیکسس جو ہے۔ یہ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کا اور یو اے ای کا آپس کے اندر ایک معاہدہ ہوا ہے، اور پھر اسرائیل کا جو سفارت خانہ ہے وہ صرف جی سی سی کنٹریز میں ہمارے سب سے قریب یو اے ای کے اندر ہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی فل فلیج وار نظر آتی ہے آگے؟ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد مہدی صاحب، آپ اکثر چینلز پہ ان کو دیکھتے ہیں، فارن پالیسی اور ڈیفنس کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم مہدی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام سروردی صاحب، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مہدی صاحب، ویسے تو لوگ ایران امریکہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں ذرا آپ سے پہلے افغانستان بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے ہم نے ڈرون مارے ہیں پاکستان کو، تو میرا مطلب جب انہوں نے کہہ دیا تو ہمیں مان لینے چاہیے کہ انہوں نے مارے ہیں، اب ہمیں جواب دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مزمل سروردی صاحب، بات آپ کی درست ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے، لیکن ہم نے یہ بتایا کہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے ہم نے کیا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان والے جو ہیں وہ اپنی روش سے واپس آنے کو تیار نہیں، اور ہم نے جو ان کے ساتھ مختلف جگہوں پر مذاکرات کیے، جس میں آخری مذاکرات اورمچی کے اندر چائنا کی ثالثی میں ہوئے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ ابھی حج کے دوران سراج حقانی صاحب جب سعودی عرب میں موجود تھے تو ان کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ پاکستان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو نارمل کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے جو گریونسز ہیں اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج کی تاریخ میں ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا، اور ہندوستان کے کہنے کے اوپر وہ جو ہے وہ لگے ہوئے، اور ہندوستان جو ان کو فیڈ کر رہا ہے وہ اسی قسم کی بات کر رہے ہیں، اور ہندوستان ہی نہیں صرف ان کی مدد کر رہا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسی قسم کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسٹ ترکمانستان والے بھی جو ہیں ان کا برین بھی جو ہے وہ ڈرون کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے پیسے اور انڈیا کے برین کے ساتھ ساتھ ان کو جو اور دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی ایک وہ ہے۔ لیکن اس میں جو صورتحال میں تھوڑی سی وہ ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ ابھی ریسنٹلی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، رشیا کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ہم نے کچھ ان کو سہولتیں ضرور آفر کی ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کیا ہے۔ لیکن یہ جو آخری ملاقات ہوئی تھی نیبرنگ کنٹریز کی تہران کے اندر، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اعلامیہ تیار ہو گیا تھا، اور سارے نیبرنگ کنٹریز جو تھے اس پہ دستخط کر رہے تھے، لیکن رشیا نے روک دیا۔ تو اب اس ساری صورتحال میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں کہاں ہماری دشمنی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کی رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنے کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ کا آخری فیصلہ رشیا کے حق میں کیا گیا کہ رشیا سے جو بھی لین دین تھا سوویت یونین کے زمانے کا، اس کو ایک طرف رکھ کر اور رشیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کو شروع کیا جائے۔
तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान रिजीम, ये सारे मिलकर जो है वो उसी जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह पर उरमची के मुज़ाकरात से पहले खड़े थे। पाकिस्तान को चाहिए कि एक तरफ तो वो चीन से बात करे और चीन से कहे कि ये आपने जो मुज़ाकरात किए थे उसका रिजल्ट ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। चाहे इसको एक और तरह भी देखना है, सुरवर्ती साहब वो कह रहे हैं आईएसके पर हमला किया है। दुनिया को वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो दाइश है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और दाइश जो है वो इंटरनेशनली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कोई भी मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता है, और यूनाइटेड नेशन के तहत जो है वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो पाकिस्तान की अभी की जो इस दिनों के अंदर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर एक पिज़ेराई मिल रही है, तो उसको भी घटाने की कोशिश है। इससे ये महसूस होता है कि इसके पीछे हिंदुस्तान क्योंकि मौजूद है, क्योंकि हमने देखा कि पूरी दुनिया ने जब शाबाश दी तो उसने जिक्र किया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान असल में इस चीज का यहां तक लेकर आने का, इस पीस को मुकम्मल करवाने में। लेकिन मोदी साहब वाहिद आदमी थे जो पाकिस्तान लिखना भूल गए, बाकी उन्होंने मुबारकबाद दी। तो ये ऐसा महसूस होता है कि ये वहां से है, तो पाकिस्तान को नेबरिंग कंट्रीज से और खासतौर पे चीन से बात कर और इस पर बात करनी पर चाहिए। जब जब अफगान वजीर दाखिला, वजीर दिफा जो हैं, वो मॉस्को से वापस आए थे, तो उन्होंने काबुल पर खड़े होकर कहा था कि अब पाकिस्तान हम पर बमबारी नहीं कर सकेगा, अब हम करेंगे। आपको याद है? जी मुझे याद है। मैं ऐसा मुआहदा कर आया हूं, तो वो अपनी जी बात पे मुझे कायम याद है। जी मुझे याद है, लेकिन उसके बाद रशिया ने इस बात को झुठला दिया। इंडिया ने कहा हम्म। था कि हमारा उनके साथ कोई डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ, ना हमने कोई चीज। उन्होंने कहा था कि हम कुछ ट्रेनिंग और उनकी जो पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए कुछ काम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम अपनी कोई डिफेंस की चीजें जो है वो तालिबान रिजीम को देंगे। तो रशिया की तरफ से ये बात आई थी। अब ये पाकिस्तान का काम है कि ये वाकई के बाद अच्छा, नहीं, पाकिस्तान के एक बात समझ अंदर। नहीं आती। पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की डिफेंस ताकत को देखें, हमारी एयर पावर को देखें, हमारी मिसाइल पावर को देखें, हमारी ड्रोन पावर को देखें, मतलब क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा। हम क्यों नहीं एक दफा अफगानिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखा देते? ये नरमी क्यों है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक दफा, मेरा मतलब है, अच्छी तरह छट्टा क्यों नहीं लगा देते? रुकावट क्या है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मजबूत लॉबी मौजूद है जो तालिबान रजीम की सपोर्टर है, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है और वो पाकिस्तान के हर इदारे में भी मौजूद है। और वो हमेशा ये बात करती है कि पाकिस्तान को अपने इस बॉर्डर को गर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो इससे पहले 2-3 दफा उन पे अटैक्स किए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। और इसका वो बरमला मीडिया के ऊपर आकर इजहार करते हैं, और कोई भी पाकिस्तानी उनको शटअप कॉल नहीं दे सकता। तो इस बात को आप जहन में रखिए कि हिंदुस्तान के मामले में सारी कौम हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझती है और हिंदुस्तान के खिलाफ हर किस्म की चीज को करने को जायज समझती है। लेकिन इसके मुकाबले में एक तबका ऐसा मौजूद है जो अफगानिस्तान के मामले के अंदर जो है वो दूसरी राय रखता है, और वो समझता है कि अफगानिस्तान उनके भाई है। बल्कि अगर मैं बड़ी बात ना हो जाए तो हमारे तो लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो दोनों तरफ की नेशनलिटीज रखनी चाहिए, और हमारे वो भी तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इफ एंड बट्स आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों का जिक्र आएगा। लेकिन आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि हमारे कहां पर आकर हाथ पांव जो हैं वो बांधे जाते हैं और रुक जाते हैं, और हम वो वाला मामला नहीं कर पाते जो इस तरह का मामला हमने पिछले साल हिंदुस्तान के साथ करके दिखाया। नहीं, पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उनकी पॉलिसी तो बहुत स्ट्रेट है, उनके रास्ते में भी लोग रुकावट हैं। बिल्कुल रुकावट है सोरवर्दी साहब, आपके सामने है, रुकावटें आपके सामने है। इस वक्त देखिए हमारे दोनों जो अपोजिशन लीडर हैं, क्यों ना नेशनल असेंबली में हो, क्यों ना सेनेट के अंदर हो, वो दोनों जो राय रखते हैं वो बहुत सारी बातों में स्टेट की राय से मुख्तलिफ है, और वो बरमला उसका इजहार जो है वो सेनेट में और कौमी असेंबली में खड़े होकर करते हैं। तो इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए, और उनके पीछे जो है वो बाकायदा एक सियासी जमात मौजूद है जो इससे पहले हुकूमत में मौजूद थी।
اور آپ نے دیکھا نہیں تھا ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں KPK میں انہوں نے کس قسم کے بیانات دیے تھے جب پاکستان نے اسٹرائکس کی ہیں. تو ان تمام باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے ہیں ہمارے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ مدد کرتی ہیں، وہ سپورٹ کرتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں. اور پھر اس کے اندر ایک بزنس پہلو بھی ہے. بہت سارے لوگ افغان ٹریڈ کے ذریعے سے پاکستان میں بیٹھ کر بھی بہت پیسے کماتے تھے. اس موجودہ رجیم نے آ کر وہ پیسے بند کر دیے، نہ افغانی کما پا رہے ہیں نہ پاکستانی کما پا رہے. تو وہ طبقہ بھی موجود ہے جو پریشرائز کرتا ہے اور بزنس کے پوائنٹ سے. اور پھر وہ ایک اور نئی بات کرتا ہے کہ دیکھیے آپ نے ایتھک گروپس جو ہیں، جو ایک طرح کے لوگ ہیں، ان کو آپس میں آپ ملنے نہیں دے رہے، ان کو تجارت نہیں کرنے دے رہے. تو اس بات کو بھی ریز کیا جاتا ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں، اگر ہم بہت کھلی گفتگو کریں تو اس قسم کی باتیں جو ہے واشنگٹن میں بیٹھ کر کی گئی، اس قسم کی باتیں لندن میں بیٹھ کر کی گئی. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھ کر جو ہے ہم فیصلے کر سکتے ہیں. ہم ان چیزوں سے باہر نکل کر بہت زیادہ فیصلے نہیں کر سکتے. پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ویو تو افغان طالبان کے خلاف نظر آیا ہے. وہ تو وہاں چھوڑے ہوئے اسلحے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں کہ واپس لینا چاہیے، وہ ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو افغانستان کے اگر ان طالبان کے خلاف ہم سٹرائکس کریں تو امریکی حمایت تو ہمیں حاصل ہوگی. دیکھیے اس وقت جہاں تک آپ امریکہ کی یا یورپ کی بات کر رہے ہیں تو ہر طرف سے ہمیں حمایت حاصل ہوگی، لیکن کیا پاکستان کے اندر بھی حمایت 100% بھی ہوگی؟ یہ ہے اصل میں سوال. دیکھیے امریکہ کو یہ کرنا چاہیے کہ بیانات سے آگے بڑھ کر جو ہر مہینے ان کی فائنینشیل ایڈ کرتے ہیں، جس کی اب رپورٹس آ چکی ہیں، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشن کی بھی رپورٹ ہے، خود امریکہ کی رپورٹ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے جن مقاصد کے لیے دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو ہوں سب سے پہلے تو امریکہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو ان پیسوں کو بند کرے. جب وہ پیسے بند ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر ایک فائنینشیل دباؤ آئے گا اور پھر ان کے لیے کسی بھی بات کو سننا آسان ہوگا. آج تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ان کو پیسے دے رہا ہے. تمام بڑے پروجیکٹس جو اس وقت افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ سب کر رہا ہے، اس میں نے فائننس کیا ہوا ہے. تو اس وقت تو ان کے پاس جو ہے وہ اتنی بڑی اکانومی کی انہیں ضرورت نہیں جتنے پیسے ان کو مل رہے ہیں. تو وہ پیسے پبلک میں استعمال نہیں ہو رہے. کوئی ہیلتھ فیسلٹیز، کیونکہ ایجوکیشن پہ تو انہوں نے خواتین پہ تو ٹوٹل پابندی لگا دی ہے، تو ان کے پیسے کہیں بھی نہیں جا رہے. ان کے پیسے یا تو اپنی ذات پر خرچ ہو رہے ہیں یا پھر دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، جس کا دوسرا نام جو ہے وہ ٹیررزم ہے، تو اس کے لیے ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک امریکہ اور دنیا اس کے آپ کو پاکستان اور افغانستان کی فل فلیج وار نظر آتی ہے آگے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی ایسے کوئی چانس ہے کہ فل فلیج، کیونکہ افغانستان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے جب کچھ عرصہ پہلے افغان طالبان کے کچھ لیڈرز آئے تھے اور یہاں پاکستان میں کچھ لوگوں سے ملے تھے اور میرے سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دیکھیے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ TTP کے اوپر قابو پا سکے. اتنے ہزار لوگ جو مسلح لوگ ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، اگر ہم نے ان کو روکنا شروع کیا اور یہ جا کر ہمارے مخالفین سے مل گئے تو ہمارے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو اس وقت تک افغانستان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے. بس ٹھیک ہے طالبان کا ہے. اور ابھی بھی آپ یہ بھی دیکھیے کہ افغانستان میں جو ڈفرینٹ ایتھنک گروپس رہتے ہیں وہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. دوحہ معاہدے کے تحت آپ نے ایک کثیر القومی حکومت بنانی تھی، لیکن طالبان رجیم جو ہے وہ اس طرف نہیں گئی. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی پچھلے ہفتے ہرات میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح وہاں پر لوگوں کی کلنگ کی گئی ہے اور جس طرح وہاں پہ طالبان چڑھ گئے ہیں، تو صورتحال ود ان دا افغانستان بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور امریکہ تو یہ بڑے دنوں سے پاکستان کو مشورے دے رہا ہے. جب میں خود امریکہ میں تھا تو وہاں پر یہ بات بہت زور و شور سے ہو رہی تھی کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ کیوں نہیں جو اپوزیشن ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرتا، کیوں نہیں پاکستان، اگر پاکستان صرف اتنا ہی کر لے تو یہ حکومت جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہے گی کہ یہ پاکستان پہ. تو پاکستان کے اندر بہرحال ایسے
लोग मौजूद हैं जिनकी बड़ी मौसर आवाज है, और वो ये समझते हैं कि तालिबान हुकूमत के खिलाफ कुछ भी करना, वो जो होगा वो इस मुसलमान भाइयों के खिलाफ होगा, अफगान भाइयों के खिलाफ होगा। मतलब उसमें मजहबी टच भी मौजूद मौजूद है और एथनिक टच भी मौजूद है। अगर अचकजई साहब कोई बात कर रहे हैं तो वो एथनिक हवाले से कर रहे हैं, अगर कोई आलिम दीन इस हवाले से बात कर रहा है तो वो मजहबी हवाले से बात कर रहा है। तो दोनों तरह की चीजें हैं, इसलिए मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई फुल फ्लैज वॉर होगी जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की होती रही है। अच्छा, अब पिछले दिनों अशरफ गनी यूएई से लेबनान चले गए, वो क्यों? देखिए, अशरफ गनी साहब जो थे वो यूएई के अंदर की जो सिचुएशन थी उसमें तालिबान वाले जो थे वो प्रेशराइज कर रहे थे यूएई को, और यूएई को ये कह रहे थे कि ऐसे लोगों की वहां मुलाकातें हो रही हैं, बल्कि उन्होंने निशानदही की कि कुछ दूसरे मुल्कों के आला सिफारतकार कब दूसरी तरह के लोगों की मुलाकातें जो हैं वो दुबई के अंदर और एक और जगह के ऊपर जो हुई है, और उसकी वजह से काबुल के अंदर जो है वो कुछ परेशानी सामने आई, और उस उन मुलाकातों को फैसिलिटेट करवाने के अंदर अशरफ गनी साहब का भी कहा जाता है हाथ था। तो इसलिए जो है वो फिर अबू धाबी ने या यूं कहे यूएई ने इस बात को मुनासिब समझा कि वक्ती तौर पर अशरफ, क्योंकि वो अशरफ गनी साहब पर से भी हाथ नहीं हटाना चाहते। अशरफ गनी साहब जिस वक्त वर्ल्ड बैंक के अंदर थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी ओपनिंग्स दिलवाई थी यूएई को, जिससे यूएई ने बड़े पैसे कमाए थे। तो इसलिए वो उनके एसेट हैं बुनियादी तौर पे अशरफ गनी साहब भी। लेकिन बहरहाल वक्ती तौर पे हालात ऐसे थे कि अशरफ गनी साहब को वहां से मूव करना पड़ा। लेकिन तालिबान का इतना दबाव तो अब यूएई गवर्नमेंट पे है कि उन्होंने अशरफ गनी को वहां से जाने पे मजबूर कर दिया। असल में सारे बड़े ठेके दिए हुए ना यूएई को, अगर वो ठेके मंसूख कर दे, क्योंकि वो सारे ठेके तो कतर चाहता था, और कतर का ये दावा था कि हमने आपकी सुलह करवाई है तो वो ठेके हमें मिलने चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट्स के तमाम हैंडलिंग जो है वो यूएई के पास है। इसके अलावा भी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यूएई देख रहा है। तो यूएई के काफी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। इसलिए तो यूएई और इंडिया नेक्सस भी है, तो हमें तो फिर ये अफगानिस्तान में ज्यादा तंग कर रहा होगा यूएई इंडिया नेक्सस जो है। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का और यूएई का आपस के अंदर एक मुआहदा हुआ है, और फिर इजराइल का जो सिफारत खाना है वो सिर्फ जीसीसी कंट्रीज में हमारे सबसे करीब यूएई के अंदर ही है। तो हमारे लिए वो भी एक प्रॉब्लम है। और फिर इजराइल का ये दावा कि इजरायली फौज ने आकर जो है यूएई को की मदद की है ईरान के अटैक्स के दौरान, तो इसका मतलब है कि उनकी फौज के फुटप्रिंट्स भी जो है वो यूएई के अंदर मौजूद है। तो बहुत सारे, लेकिन मेरी जाती मालूमात है, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गलत है, कि एक बहुत हाई लेवल के यूएई के साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, और उनकी पाकिस्तान की टॉप ब्रास के साथ मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों के अंदर किसी हद तक बर्फ पिघली है, और पाकिस्तान उनको अपना मुद्दा बयान करने में कामयाब हुआ है। और वो भी बुनियादी तौर पे आए इसीलिए थे कि वो भी ये महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जो उनकी दूरी है उसको किसी तरह ब्रिज किया जाए। तो वो रहे तो चंद घंटे इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन इस्लामाबाद में जो हमारे इस वक्त के करते धरते हैं उनसे उनकी मुलाकातें हुई, और कोशिश ये की गई कि इसको जरा थोड़ा सा सेपरेट रखा जाए, इसको मीडिया में ना लेकर आया जाए। तो बहरहाल कहा यह जा रहा है कि जो आज से चंद माह पहले सूरत हाल थी उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। अच्छा, फर्क पड़ा है। और जो यूएई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा था उसमें भी कमी होगी। मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ रुक आ गया है। जो जिस तेजी के साथ लोग वापस आ रहे थे, अगर अब आप चेक करें तो उस तेजी के साथ वापस नहीं आ रहे हैं, और लोग जो हैं वो किसी हद तक जो है वो ठहर गए हैं। और क्योंकि वो एक जंग का भी मामला था ईरान के साथ, और एक खास किस्म के लोगों की भी बात थी, तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ठहराव आया है। हाँ। अच्छा, अब दोबारा लेबनान का सीज फायर हो गया है। शाम को मैं और आप तो रात को लेट नाइट बात कर रहे हैं। हिजबुल्ला और इसराइल का सीज फायर हो गया है। तो एक दफा जो लगता था माहिदा टूट जाएगा वो वापस ट्रैक पर आ गया। देखिए मुजम्मिल साहब, मैं नहीं समझता था कि इस बात से मुआहदा टूट जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर की सूरत हाल है, आया कि इसमें कोई शक नहीं कि
इसराइली लॉबी वॉशिंगटन में सबसे तगड़ी लॉबी समझी जाती है, खासतौर पे फाइनेंशियली। लेकिन अमेरिका के अंदर के जो हालात थे, और जेडी वेंस साहब जो मुतवक्का सदारती उम्मीदवार नहीं है बल्कि अपने आप को सदर के तौर पे देख रहे हैं, वो पहले दिन से क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाँ, अगर हम यहाँ ये तवक्कुआत रखें, अभी मैं किसी टीवी शो में था तो एक साबिक जनरल के साहबजादे भी मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि जी अमेरिका वीटो कर दे इसराइल के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वीटो शीटो तो नहीं होगा, लेकिन इसराइल को जो है इस वक्त जो है वो ये कहा जाएगा कि भाई आप खामोश हो जाएं, और अभी की जो सूरत हाल है उसके अंदर हमें चलने दें। और अभी ये 19 अगस्त तक, क्योंकि 60 दिन की बात हो रही है, तो 19 अगस्त तक के क्या मामलात निकलते क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है मुझसे बेहतर के 27 अक्टूबर को इसराइल में इलेक्शन है और 3 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन जो है अमेरिका के अंदर है। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका के लिए नेतन्याहू इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका के लिए इसराइल इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने हमेशा इसराइल को मिडिल ईस्ट में एक थानेदार के तौर पे, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन 67 और 73 की वॉर में जो उसका एक एक बना था, वो बहरहाल ईरान ने किसी हद तक तोड़ दिया। आया कि कोई इसराइल का आ, 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 वैसे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसमें हम ये कहें कि बहुत ज्यादा लोग मारे गए हों, लेकिन इसके बावजूद जो है ये नजर आता है कि इस जंग के अंदर इसराइल ही लूजर है, और इसराइल ने जो स्पेस हासिल की थी वो स्पेस उसकी वापस चली गई है। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका फिलहाल इसराइल को ये नहीं चाहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस 60 दिनों के बाद कोई आइडियल सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, नहीं, इसराइल की अपनी हैसियत बरकरार रहेगी, इसराइल का अमेरिका के साथ ताल्लुकात बरकरार रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। नेतन्याहू हो सकता है अपनी जगह पे ना रहे, इनकी जगह पे कोई और आ जाए। तो ये जो सीज फायर का मामला है ये फिलहाल चलेगा। अभी ये जो मुज़ाकरात की बात है ये चलेगी। मेरा ख्याल है कि अभी ईरान भी जो था वो कोई जल्दी में नहीं था, और ईरान ने इसको सुस्त करके बहुत कुछ हासिल किया है। तो ईरान अभी भी जो है उसके अंदर वो तेजी नहीं नजर आ रही। फिर वहां पर आपको पता है कि मुहर्रम भी चल रहे हैं, और मुहर्रम के अलावा खामनाई साहब की जो है वो नमाज जनाजा के प्रोग्राम्स भी सामने आ गए हैं, और उनकी फिर उनको दफनाने का जो मामला है वो भी सामने आ गया है। तो ये उनका काफी क्रूशियल टाइम है, और उनकी जो लीडरशिप है और वो सब लोग जो है वो काफी ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये उनके इनकलाब को एक नई रूह देगा कि कितने लोगों की पार्टिसिपेशन है। जो ईरान के अंदर डिवाइड है, और खास तौर पे जो इनकलाबियों के अंदर डिवाइड है, ये एक बेहतरीन मौका होगा। इस मौके से मौजूदा ईरानी गवर्नमेंट फायदा उठाए, क्योंकि हम ये बात देख चुके हैं कि मुश्तबा खामनाई साहब ने ये बात फरमाई है कि वो इस मुआहदे से मुतमईन नहीं थे, लेकिन मसूद पज़ेश्कियान साहब ने उनको बताया कि नहीं, इस मुआहदे से क्या। इसका मतलब ये हुआ कि पासदारान या जो ताकतवर हल्के थे वो इनको इस मुआहदे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और जो सियासी जहन के लोग थे या जो सियासत करते थे वो इसे एक्सेप्ट कर रहे थे। तो अब ये एक अंदर की भी कशमकश है। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुज़ाकरात जो है ये चलेंगे, और इस मुज़ाकरात से जो है कोशिश होगी दोनों साइड्स की कि कुछ ना कुछ अच्छा निकले। मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की बात हुई है, क्या देख रहे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान का इस सीज फायर के बाद? आगे हमारा, पहले हमारे कुछ जंगी जहाज और फौज तो वहां चली गई थी जंग के दौरान, आगे अब क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का उनके साथ अब एक मुआहदा, एक डिफेंस पैक्ट है। पाकिस्तान ने खास किस्म की फौज वहां पे भेजनी है। ये 81 के जो मुआहदा था उससे मुख्तलिफ है, ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं है, ये एक बड़े लेवल पर है। तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान उनकी सरहदों की डिफेंस के तौर पर भी काम करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी उनकी मदद करेगा। तो पाकिस्तान का ये, और हम ये देख रहे हैं कि संडे को उन 4 मुल्कों का जो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे उनका एक इजलास भी हो रहा है। इसहाक डार साहब उसमें शामिल हो रहे हैं, और जो एक पैरेलल एक और बात चल रही है कि एक इस डिफेंस पैक्ट से हटकर एक डिफेंस पैक्ट किया जाए जिसके अंदर ये तमाम ममालिक शामिल हों। और जो हालात बने हुए और इसराइल जिस तरह पीछे गया है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये बहुत जरूरी है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो राब्ते के अंदर रहें। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जीसीसी के
एक से दो मुल्क जो हैं वो इससे मिलता जुलता मुआहिदा भी पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, और वो पाइपलाइन के अंदर मौजूद है और उस पर गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान थोड़ा सा शायद एक मुल्क में रिलेक्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान पुलिसिंग नहीं करना चाहता, सिर्फ डिफेंस अम्ब्रेला देना चाहता है। तो ये चीजें जो है ये इस तरफ जा रही हैं, क्योंकि जो हालात पैदा हुए, जो अमेरिका ने इसराइल के खातिर ये लड़ाई लड़ी, लेकिन ईरान ने जो फाइट बैक की और ईरान ने जिस तरह हमले किए, तो उसके बाद जरूरी हो गया है कि वेस्ट एशिया के अंदर जो है एक नई सिक्योरिटी जोन बनाया जाए, और उसके अंदर पाकिस्तान का भी एक रोल हो, और उसके अंदर जो है वो ईरान भी मौजूद हो, कि ऐसी सूरत हाल बने कि कोई कश्मकश ना पैदा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मुसलमान मुल्कों के अंदर कोई कश्मकश पैदा हो। और पाकिस्तान ने जहां सबसे बड़ा काम ये किया था कि 46 साल के बाद दोनों मुल्कों को इकट्ठे बिठा दिया था, वहां दूसरा मेरा ख्याल है बहुत बड़ा काम ये किया कि मुसलमानों को मुसलमानों से नहीं लड़ने दिया, और बार बार सऊदी अरेबिया को और बाकी मुल्कों को ये बात समझाई कि असल में इस लड़ाई को कौन बढ़वाना चाहता है, तो आपकी मेहरबानी है कि आप इस लड़ाई में मत पड़े। तो पाकिस्तान अब मेरा ख्याल है इसको मजीद लीड करेगा, और ये जो सारे ममालिक हैं इनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब हमारे साथ बात करने का। बहुत इट वाज शुक्रिया प्लेजर, आपका इट वाज प्लेजर वर्दी टॉकिंग साहब। टू, थैंक यू वेरी मच।